A very good afternoon, all of you. Today I am going to start with the simple past tense. Yesterday I have sent you some link of present tense. I hope that you have done that. You have watched that link carefully, and now I'm going to start with simple past tense. So let's discuss about simple past tense. In this simple past tense, we are going to start with the definition. All right, then structure. You know that what is a structure is divided into affirmative, all right, and in affirmative, then negative sentence, and then interrogative sentences. All right, structure means affirmative sentences, negative sentences, and interrogative sentences. All right, okay. And after that structure we will do forms also. All right, forms matlab forms of verbs, like regular verbs and irregular verbs. You have done regular verbs and irregular verbs in class 8th also, 9th also. So maybe you forgot about regular and irregular verbs. All right, we will discuss regular verbs and irregular verbs also in this slides. And then we will do uses, comparison between simple past and present continuous. all right, सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी हम कंपैरिजन जो है वो विल सी दैट व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंस is there in simple past and present continuous. After that, conclusion. All right, I will show you some examples also. Through examples also we will understand these simple past tense. All right, without wasting our time, let's start with the definition. Clear? Okay, so what is simple past tense? My dear students, simple past expresses an action in the past taking place once, never or several time. ये एक ऐसा टेंस है जिसमें आप भूतकाल में हुआ, जो भी पास्ट में हुआ है, उसको एक बार हुआ है या कभी नहीं हुआ या बहुत बार हुआ है, उसको डिस्कस करने के लिए यूज़ करते हैं फॉर द स्पेसिफिक टाइम. All right, it can also be used for action taking place one after another or in the middle of another action. कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्शन होने के, कोई हम सेंटेंस बोल रही है. फॉर एग्जाम्पल, मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा. ऑल राइट, हम इसमें क्या करते हैं, या, ये और ये. ऑल राइट, मैं वहाँ गया. ओके, मैं वहाँ गया, इट मीन्स क्या आ जाएगा, मैं वहाँ गया तो आई वेंट देयर. आई वेंट, मैं गया, और वहाँ गया तो क्या आ जाएगा, आई वेंट देयर. ओके, देयर मतलब वहाँ. अंडरस्टैंड? मैं वहाँ गई तो आई वेंट देयर. अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस. या, ये इस तरह के सेंटेंस को हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में वी विल यूज़. और सिंपल पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, विच वर्ब वी विल यूज़ इन सिंपल पास्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. विच वर्ब? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2. अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, मैं गया तो आई, मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई, और गया के लिए क्या लिखेंगे, वेंट. वाई? बिकॉज गो, वेंट, गोन. तो सेकेंड फॉर्म क्या है हमारी, वेंट. मैं गया. अगर आपने लिखना है कि हम गए, ओके, तो आप कैसे लिखेंगे, हम मीन्स वी, वेंट मीन्स गए. ओके, हम गए. इफ़ यू वांट टू से कि आप लिख रहे वे गए, वे मतलब दे, ज़्यादा है ना, तो वे मतलब दे वेंट. ओके, इफ़ यू वांट टू से कि वह आया, फिर से या है पीछे, या है ना, वह आया, तो ही, सेकेंड फॉर्म ऑफ आए की, कम केम, कम, ही केम. ऑल राइट, अगर आप लिख रही है वह वापिस आया तो लिखेंगे ही केम बैक. वह वापिस आया. Hope you have understood this thing. This is the basic thing that I am going to explain in simple past tense. थोड़े समय के लिए वह गया, वह आया, ठीक है. मैं उससे मिला, मैं उससे मिली. मैंने पत्र लिखा तो आई राइट, रोट, रिटन ना, तो सेकेंड फॉर्म है रोट, आई रोट. मैंने लिखा, क्या लिखा,
आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा. Okay, so in this way, this is the structure. All right, but you have to remember that we will use V2 here, and in simple present, what will we use? V1 plus sorry, yes, यहाँ पर simple है V2. All right, I hope that you have understood the definition properly. Okay, मैं वहाँ गया, मैंने देखा वो खाना खा रहे थे, खाना खा रहे थे, that is another tense. All right, that is another action. खाना खा रहे थे. आपने क्या देखा? मैंने देखा I, वेट अ मिनट. ओके, मैंने देखा, आई सॉ, मैंने देखा, आपने देखा, देन कौन, वे खाना खा रहे थे ना. आई सॉ दैट दे वर ईटिंग फूड, दे वर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे थे. अंडरस्टैंड? सो टू एक्शन यू कैन एक्सप्लेन दिस. टू एक्शन जो है वो हो रही हो और साथ में सिंपल पास्ट का भी एक्शन चल रहा है. अंडरस्टैंड? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. एक्शन टेकिंग प्लेसेस वन आफ्टर अनदर in the middle of another action. This is the definition. Now let's discuss this definition in more clearly. So what is simple past tense? Simple past tense means simple past expresses an action in the past taking place once, never, several times. It can also be used for action taking place one after another or in the middle of another action. Same thing is given here. Next is structure. Structure क्या है? I already told you about structure also. That subject, V2, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन. एक्सटेंशन होता है कि कुछ एक्स्ट्रा जो है, लाइक ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, एक्चुअली बेटा टेंस का टॉपिक इतना बड़ा है बिकॉज टेंस में आपकी वर्ब आ जाती है, आपके प्रोनाउन आ जाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, everything is there. You have to understand, first you have to understand pronoun, all right, adjective, adverb, phrases, clauses, then you will able to understand tenses easily. अगर आपको ये सब नहीं पता है then it is very difficult to understand any tense because यहाँ पे लिखा है extension. ऑलराइट, आपको यही नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट, इफ यू डोंट नो अबाउट दैट ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर आपको यही नहीं पता है देन यू बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ऑलराइट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ड्यूरिंग टेंसेस टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ग्रामर. ऑलराइट, तो एक्सटेंशन होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके ओके, लेट्स डिस्कस इट मोर क्लियरली. सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई. All right, so we are going to understand this structure with the help of example. I saw two colorful fishes in the lake yesterday. So I is your subject here. So कैसे होगा? Verb of see. Okay, second form क्या होगी? saw. And what is the third form? seen. See, saw, seen. तो V2 यूज करेंगे हम. This is your verb V2. Two colorful fishes is your object here. In the lake yesterday, this is your extra object. This is called extension. What is it called? Extension. Extra. All right. So हमारा यहाँ पर मेन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन. आई सॉ टू कलरफुल फिशेज. मैंने क्या देखा? मैंने देखा दो कलरफुल फिशेज. कहाँ पर देखी? इन द लेक येस्टरडे, कल देखी. और कहाँ पर देखी? लेक में. ऑल राइट, सो दिस इज द अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. और अच्छी तरीके से वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इट. फॉर रेगुलर वर्ब्स simply use the ed form of the verb in positive sentences. Positive sentences means अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नेगेटिव नोट नहीं लगा होता है. अंडरस्टैंड? और रेगुलर वर्ब्स क्या होती है? रेगुलर वर्ब्स होती है लाइक प्ले है. ओके, आपने प्ले के साथ क्या लगा दिया? ईडी. जब हम सिंपल वर्ब के साथ डी या ईडी लगाते हैं दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. और इरेगुलर क्या होगी? इरेगुलर होगी गो, वेंट, गॉन. आपकी फर्स्ट वर्ब क्या है? गो. सेकेंड फॉर्म क्या है? एकदम से चेंज हो गई, वेंट.
नहीं मिलती ना बीच में, ईडी नहीं लगता। और थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गॉन। दे बोथ all three verbs are different from one another, that's why they are called irregular verbs. But regular verbs are called, like ed you have to use with the main verb, with the base verb, base word. All right, so simply use the ed form of the verb in a positive sentences. For example, when I was a child, जब मैं बच्ची थी, I played the piano. It is a affirmative sentence, positive sentence है without negative, that's why here we too used. और यहाँ पर कब की बात हो रही है, आपकी पास्ट की बात हो रही है, जब आप 2 साल के थे तब आप क्या करते थे, पियानो बजाते थे। ठीक है, मैंने पियानो बजाया जब मैं 2 साल की थी। ओके, वी टू। देन डोना डैश, डोना लिव्ड एंड स्टडीड इन पेरिस, कब की बात है ये, व्हेन शी वॉज यंगर, जब वो छोटी थी। ओके, सो बी केयरफुल विद स्पेलिंग चेंजेस ऑल्सो। स्टडी IED लग जाएगा, वहाँ पर वाई जो है कट हो जाएगा, यू हैव टू प्लेस IED. Alright, these things you have to understand carefully, and you have to learn these things also through the help of forms of verb. Clear?